मीर महबूब अली का 134 महबूब नगर का नाम रखने का प्रोग्राम करे, उसको मैं महबूब नगर सबके तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम को हमारा हादी साहब और बाबा ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం, మనం ఈరోజు ఉంటాము, రేపు పొద్దుగాల చనిపోతాం, నేను కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా. కానీ మనం చేసే పనులు ఎప్పటికీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు మహబూబ్ నగర్ ఇక్కడ ప్రాంతాన్ని చూసి ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ అని పేరు ఆయన పేరు పైన వచ్చింది కాబట్టి 134 ఏళ్ల కిందటి విషయాలు కూడా మనం మీర్ మహబూబ్ అలీ గారిని ఈరోజు తలుచుకుంటున్నాం అంటే ఆయన చేసిన మంచితనం. అదేవిధంగా నాకు కూడా రహీం సార్ నా దగ్గరికి ఎన్నోసార్లు వచ్చింది, సార్ మీర్ మహబూబ్ అలీ ఫౌండేషన్ దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి, నేను కవిత గారితో పోయినా, అక్కడ ఇంతకుముందు ఉన్న హోమ్ మినిస్టర్ గారితో పోయినా, నేను వచ్చి దాన్ని ఫౌండేషన్ వేపిస్తున్నా అని చెప్పి అప్పట్లో మన హోంమంత్రి గారు కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ ఫౌండేషన్ చేసినారు. అంటే అంతవరకు కూడా నాకు మీర్ మహబూబ్ అలీ అనే అతను ఎవరు ఏంది అనే విషయాలు తెలియదు, చాలా మందికి కూడా మహబూబ్ నగర్లో తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు మీర్ మహబూబ్ అలీ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఒక మహబూబ్ నగర్ మధ్యలో అంటే 2 టౌన్ చౌరస్తా ఆ ఏరియాలో ఒక మీర్ మహబూబ్ అలీ ఒక బిల్డింగ్ కడతా ఉన్నాము. అక్కడ ఒకటి అతన్ని స్టాచ్యూ ఏదది మినార్ ఒకటి కడతా ఉన్నామంటే మహబూబ్ నగర్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుస్తుంది. అంటే మనం ఈ రోజు ఉంటాం, తర్వాత చనిపోతాం, వచ్చే జనరేషన్ కూడా మీర్ మహబూబ్ అలీ అంటే ఎవరు, వాళ్ళది ఇక్కడ ఒక స్తూపం కడతా ఉన్నారు అంటే ఎప్పటికీ ఉండే విషయాలు ఇవి. మనం ఉన్నా లేకున్నా మన మహబూబ్ నగర్లో మీర్ మహబూబ్ అలీ గారు అనే పేరు ఎప్పటికీ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమం హాజీ గారు కానివ్వండి, తర్వాత వాళ్ళ కౌన్సిలర్ ఎవరైతే ఫ్లోర్ లీడర్ ఉన్నారో వాళ్ళు మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీలో ఒక ఎజెండా కింద పెట్టి అక్కడ 20 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి మన ఎమ్మెల్యే గారు ఆదేశాల ప్రకారము అక్కడ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఆనంద్ గౌడ్ గారు, షబ్బీర్ అలీ గారు, ఇక్కడ ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడరు వీళ్ళందరూ కలిసి 20 లక్షల రూపాయలు అక్కడ శాంక్షన్ చేసి అక్కడ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉందంటే చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇది కావాల్సిందే. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కానీ సందర్భం మనం చూసినాం. హోమ్ మినిస్టర్ గారు అక్కడ వచ్చేసి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసిపోయింది కూడా 7 ఇయర్స్ అయిందా, 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ వేసింది. కానీ అక్కడ ఏం కార్యక్రమాలు జరగలేదు. కానీ ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కలిసిన ఎంబడే నేను, రహీం గారు, తర్వాత మన హాజీ గారు మేమందరం పోయి అడిగినాం, సార్ ఇట్లా అయింది, మీరు ఖచ్చితంగా ఇది చేయవలసిందే. 10 సంవత్సరాల నుంచి కానీ ప్రోగ్రాము అప్పుడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆ ప్రోగ్రాం చేయలేదు. ఇప్పుడు మనం చేయాలి, మహబూబ్ అలీ అనేటతనిది మొత్తానికి కూడా తెలవాలి అనే ఒక ఆలోచనతోటి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తే ఇది బాగానే ఉంది ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి కూడా ఆ కార్యక్రమం మనం మొదలుపెట్టాం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం చాలా ఇంకా చేసుకునేది ఉంది ఫ్యూచర్లో. మహబూబ్ నగర్ అంటేనే మహబూబ్, ప్రేమగల ప్రాంతం ఇది. ఈ ప్రేమగల ప్రాంతంలో కూడా కొంతమంది విధ్వంసాలు సృష్టించాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకు బాబ్శేఖర్ సార్ చెప్పినారు ఏమని, మహబూబ్ నగర్ నువ్వు పాలమూరు అనేది చేస్తారని కొంతమంది ఎందుకు తీసుకున్నావు, కరెక్ట్గా చెప్పినారు. 134 ఏళ్ల క్రిందట మహబూబ్ నగర్ అనే పేరు ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది. అది గెజిట్లో కానివ్వండి, ఇండియా లెవెల్లో కానివ్వండి, ప్రపంచంలో కూడా గూగుల్లో కొడితే మహబూబ్ నగర్ అంటే మన ప్రాంతం చూపిస్తుంది. కొంతమంది దీన్ని పాలమూరు అని పిలిస్తే అది పాలమూరుగా మారదు. కాబట్టి దాని గురించి మనం ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రికార్డులలో ఖచ్చితంగా అది మహబూబ్ నగర్ అనే ఉంటుంది. పాలమూరు మార్చాలంటే ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఎంపీ వెంకటేష్ నా పేరుని ఇప్పుడు మార్చుకోవాలంటే మారుస్తారా? మారిస్తే కూడా ఏమంటారు, ఎంపీ వెంకటేష్ అని అంటారు. అటువంటిది ఉండదు. ఎవరు కూడా మనము ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం లేదు, భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఇది మహబూబ్ నగర్ అంటే మహబూబ్ నగర్నే ఈ భూమి ఉన్నంత కాలము మహబూబ్ నగర్ పేరు మీదనే ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి మహబూబ్ అలీ గారిని బయటికి తీసుకొని వచ్చి వారి అక్కడ స్తూపాన్ని నిర్మించాలని, అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలని మొత్తం ఈ ఆలోచన మొత్తం మా రహీం గారిదే. కాబట్టి మనం అందరం కూడా రహీం గారిని ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు అభినందించాలని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ఖచ్చితంగా నా వంతు కూడా తోడ్పాటు ఉంటుంది. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం అంటే 134 ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి 135వ సంవత్సరము మనం ఏదైతే అక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామో, బిల్డింగ్ కడతా ఉన్నామో అక్కడే మనము మంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించిన రహీం గారికి వారి బృందానికి పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు రహీం గారు ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని చెప్పి ఇంతకుముందు బాబర్ షేక్ గారు చెప్పినట్లు రహీం గారు ఏ పని చేయాలనుకున్నా కానీ ఏమి ఇవ్వడు. నా దగ్గరికి 30 సార్లు వచ్చి సార్ క్యాకరింగ్ అన్ని ఆయన చేస్తాం కానీ మళ్ళీ మనతో చేయించినట్టు చెప్తాడు. కాబట్టి రహీం గారు కూడా మేము ఎంత ఉంటాము, హాజీబాయి ఎంత ఉంటాం మేము అందరము. హాజీబాయి గారి ఆధ్వర్యంలో రహీం గారి ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా మనం ముందరికి తీసుకుపోతామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించిన రహీం గారికి వారి బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతాము. स्टाफ को लेकर आगे बढ़ा था तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। इस सेकुलर पार्टी में रह के हुक्मरा जमात में रह के क्या मजाक कर रहे हैं, वैसे का नाम नहीं कर रहे। तब फिरका परस्ती के माहौल में उन्होंने थोड़ी क्षमा जलाई थी और बहुत कोशिश के बाद R&D स्कूल में उन्होंने 120 गज जगह हासिल की थी। उस वक्त के वजीर मकामी और होम मिनिस्टर और सबने मिलकर उसका पॉजिशन में रखा था, जगह खाली रखी। लेकिन गुज़श्ता बंदे 2-4 महीने इजलास में अगर कानून में है तो उसे उठा दूँ मैं काउंसिल में बागंगाधर जिल का कुत्ता लगा के आया काउंसिल में म्यूनसिपल काउंसिल में बागंगाधर काउंसिल का राजीव गांधी का कुत्ता लगाने का एजेंडा आया। जबकि दोनों अशोक पहले से थे लोग उसके बाद तुझे बोलना पड़ा जब लगा रहे तो हमारा कैसे लगा रहे। मेरा MLA साहब का रूल है ना या मंत्री साहब का रूल है। काउंसिल में सिवाय रूल से भी बात नहीं है, जगह थी वहाँ मालूम था कि जगह है वहाँ और इस साहब के दिल ख्याल आया कि दोनों का लग रहा तो हमारा एक लगा रहे, हमारा भी लगाना चाहिए। हम दो मुतालबे करें, एक अबुल कलाम आजाद का और एक इसका, क्योंकि इनकी जगह थी हिफाजत को मंजूर है। अबुल कलाम आजाद के लिए इनकी जगह मंजूर होगी। इसमें किसी कारनामा किसी मिनिस्टर का हुकूमत का कारनामा नहीं है। जो काउंसिलर है उनका चुना उसके बाद जगह डालो, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट को मेरी बात सुनो भाई। उसके बाद जब मेरे सामने बात रखे बेचारे बहुत खुश हो बना करना हाथ में करना चाहिए, काम करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन प्रपोजल में उनका हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। वक्तियों बोले ना पहले लोग है नए लोग नहीं, पुराने लोग काम करें, नए लोग कोई भी नए लोग मंजूरी दी ठीक है। इजाजत हमारे को इतना नहीं कहूँ, अगर इतना करते तो बाद में गणेश का तिलक का पुतला नहीं रखता, तिलक के पुतलों को दिया मुसलमान खुशियों को भी नहीं दिया इजाजत। अभी जब काम शुरू हुआ फिर ड्यूटी यही आके तो काम रुका दी, कहीं कोई रास्ता छोटा है गेस्टों को जाने का रास्ता रोक दी, काम रुका दी, सुबह के नाम काम रुका दी। फिर आके बोले बैठ जाके चेयरमैन साहब जाके बोले हम ये जगह बदल के जगह वो पुरानी जगह गेट खोलेंगे, वो ताला मारा के बंद कर दी जगह को, वो जगह खोलेंगे वो तो फिर जगह खुली फिर काम शुरू हो रहा। फिर हमारा भी जाके काम रोके, फिर हमें साहब कोई कुछ नहीं बोले, फिर हम ही जाके बोला चेयरमैन साहब भाई चेयरमैन साहब कौन सा साहब तीनों का काम फिर लगा हुआ है। कहीं वो तिलक का मुजरबाद था बोलते, अगर तिलक का था आपको मुझे कोई मजदूर नहीं देने वाले थे आपको, मैं 5 मजदूर लगे अभी वही गजाल में वही 10 बुद्धा लगे थे राइट तरफ, तिलक के मतलब ओम का पुतला भी लगा हुआ है। हम इतना नहीं किसी को क्या लगा, हमारी बात हम करने वाले हैं भाई, आप उनको करें हमारे करो, उनको कहीं फूट बोल के इतराम नहीं करे कभी भी हम, पर हमारा इतना बड़ा दिल है कि हम किसी को इतराम नहीं कर रहे, तो उनके साथ हमारे को करो बोल रहे, तो उनके साथ हमारे को दिया गया, हमारी खास तौर कोई भी नहीं। एक बात वजाहत करना था, वादा करो इंशाल्लाह भाई आदमी सेकुलर होंगे, अच्छे होंगे, मेरे साथ काम लेंगे, हम वोट डालें काम लेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो बोले तो छुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। मौका था मैं नहीं बोलता था बात, आगे बोले वो बताओ बोला पड़ा मेरे फिर काम करने वाला आदमी मौके इतना के बाद फिर मेरे साथ दिनों में 20 लाख रुपए और बड़ा बनेंगे और मंदिर बनेंगे, तब आप गवर्नमेंट करेगी और कुछ गवर्नमेंट से और बड़ा बनेंगे खुदा बनेंगे। बहादुर साहब ने महबूब नगर को बसाया, सवारा, दुआओं से नवाजा। आज इस शहर में अमन ही अमन है अल्लाह के फजल से। इस शहर का नाम महबूब नगर रखा गया है। महबूब नगर आवाम की ख्वाहिशों से और यहाँ के उनके चाहने वालों से महबूब नगर रखा गया है। महबूब नगर एक ऐसा शहर है, इस शहर में मोहब्बत खुलूस यहाँ बसी हुई है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब कौम के लोग एक जगह जमा होते हैं और अपने हर त्योहार में मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसे ही इस महबूब नगर शहर को बसाने वाले बादशाह आसिफ जहाँ शिशुम नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर, ये सोसाइटी
कायम होकर एक सेकुलर भाषा थी, उनकी तारीख है। हाल ही में हमने एक 10 साल पहले मैं आरएनबी गेस्ट हाउस महबूबनगर के बीच आरएनबी गेस्ट हाउस में 120 गज का एक महबूबिया हाल के यहाँ से मैं सैंक्शन लाया और वो सैंक्शन होकर भी 10 साल हो चुके थे। 2 मरतबा 8-8 लाख रुपए भी आके गए म्यूनसिपल तामीर नहीं हो सकी साबिक हुकूमत में। मैं साबिक हुकूमत में टीआरएस का मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ रहा, मैं उस काम को अंजाम नहीं दे सका सही तरह से। इसके पीछे खास तौर से गैर फॉर्म वाले तो नहीं रहे, मैं अपने लोगों का ही बहुत टाचर रहा। ये एक मेरे घर का काम है और ये काम उससे मेरे फायदा हो रहा है और मैं उससे कई पैसे हासिल करे जैसा असर फॉलो फीलिंग। जो काम करने का तजुर्बा, काम करने की एक जुनून रहना चाहिए। मैं हाल ही में 8-10 साल पहले एनटीआर डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम सैंक्शन कराया बीए का। जब केसीआर साहब महबूब नगर में एमपी थे, उनका वादा था, मैं पूछा करा तो दे तुम उनके बोले एमपी बनने के बाद उनकी साहिबजादी मिली तो एक वक्त सेक्रेटरीट में पूछा मैं ऐसा वादा करे थे आपके वालिद साहब, मैडम ऐसा बोल फौरन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलाई और फौरन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोली 24 घंटे के अंदर इसका आर्डर का भी देना, बीए बीकॉम सैंक्शन करके रेंज का भी देना। मेरा नाम मेरा फ़ोन नंबर देने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़ोन कर मेरे घर से बुलाकर मेरे को सेक्रेटरी दी। तो ऐसे कामें बहुत से हैं, लेकिन हमारी तारीख, हमारी पहचान, हमारा नाम के वास्ते हमारे तरफ है, हम किसी को तनकीद नहीं कर रहे। रहीम साहब का कारनामा सभी वाकिफ़ हैं, यकीनन अच्छा कारनामा, बहुत बेहतरीन कारनामा है। आज के हिसाब से आज के दौर में कल एक जो न्यूज़ आई वो देखा गए तो इनका बहुत बेहतरीन काम है, ये ज़रूरी था। कल की जो न्यूज़ आई, मेरा ही एक साथी टीआरएस का पुराना लीडर जीटी कृष्णा एक न्यूज़ देता, पालामूर का नाम बदल के पंडा सायना नाम रखो, डिमांड कर रहा। सोचने वाली बात है। पंडा सायना एक चोर डाकू का नाम रखो। महबूब अली खान किधर तो डाकू किधर। मेरे दादा निज़ाम के ज़माने के अमीन थे यहाँ पे, उन्होंने कई बार अरेस्ट करे, उसको इनकाउंटर में मारा गया। चोर डाकू का नाम रखो बोल के एक न्यूज़ आ रही, शर्म की बात है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम है। महबूब नगर हमेशा महबूब नगर के नाम से कायम रहे, ये अल्लाह ताला से हमारी दुआ है। आपके जो भी काम हैं आगे जो चल रहे हैं वो महबूबिया हाल जो बन रहा है, इंशाल्लाह उसमें हर कोई ताउन कर रहा, आपकी मदद कर रहा, हुकूमत भी कर रही, एमएलए साहब भी कर रहे। इंशाल्लाह हम भी कहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन साथ रहेंगे। बहरहाल इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। साहब की जो जुस्तजू जो कविशें हैं यकीनन वो काबिल सताइश है, क्योंकि रहीम साहब ने वो कारनामा कर दिया है जो इस मुल्क के आज़ाद होने के बाद से महबूबनगर की किसी मुस्लिम कायद ने नहीं किया। शहर के खल में मीर मोहम्मद अली खान साहब के नाम पर अराजी को अलाट करना बहुत बड़ा कारनामा है, ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। नहीं, हम जो काम अच्छा है उसकी बराबर सताइश करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो काम किया है, जो जिद लेकर ऐसा लगता था जब ये इब्तिदा किए थे शायद ये अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे या नहीं, ऐसा महसूस होता था। लेकिन इनकी जिद ने और इनकी हमारे केसीआर साहब के दरमियान इनकी जो रखावत थी, मोहब्बत थी, जो उसका भी उन्होंने इस्तेमाल करते हुए जो जगह हासिल की, वो बहुत बड़ा कारनामा है, इसके लिए काबिल सताइश है। रही बात हाल की, मैं बेबाक क़ायद मजलिस के फ्लोरिडा सैयद सादुल्लाह हुसैनी की भी मैं सताइश करूँगा कि उसने मौके पर उठकर अगर उस वक्त काउंसिल में बर वक्त अगर वो नुमाइंदे ही नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि 20 लाख भी मंजूर नहीं होते थे। वो भी काबिल सताइश है, यहाँ हमारे दरमियान नहीं है। और अब्दुल हाजी साहब की क़यादत गिरोह क़यादत जो सैयद सादुल्लाह हुसैनी को हमेशा आगे बढ़ाकर चलते हैं, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। तो मैं चाहता हूँ कि रहीम साहब अपने हाल की तामीर अच्छे बेहतर से बेहतर कराए। इंशाल्लाह वो भी कौम के लिए असासा साबित होगा।
वो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हमारी कौम की जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रहेंगी। इंशाल्लाह उसमें हम उसका काम उससे काम लेंगे। बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं जनाब अब्दुल रहीम साहब उस हाल की तामीर के लिए, वहाँ की जगह की मंजूरी के लिए। अब रही बात महबूब नगर के नाम की, आज 134वां जश्न महबूब नगर है। होना तो ये था कि हम इसको बड़े फ़कीर मिसाल पैमाने पर करते, लेकिन सबसे अब की कोताहियाँ हैं, हमारी भी हैं और बहुत सी कोताहियाँ हैं, इसको बड़े पैमाने पर लेकर नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा रहीम भाई आगे रहेंगे, इस खुसूस में आगे भी कुछ काम होगा। और सलाम और हिंदू भाइयों को सबको नमस्कार। बहुत खुशी की बात है जो रहीम साहब की जो कारगुजारी है, कई सालों के बाद उन्होंने बीज बोया था, आज फूल और फल पैदा हो रहे हैं, तो हमें खुशी होना चाहिए। बुजुर्ग भाइयों दोस्तों, आजकल इतने पैदा हो चुके हैं कि महबूब नगर का नाम बदल कर पालामूर जिला रखना चाह रहे हैं। पालामूर क्या है, ये दूध का नाम है। चलो भाई, एक काबिल लीडर था, एक फौजी था, आज़ादी में कुछ खुदकशी हो गई, वो हो गया, तो उसका नाम रखना वाजिब है। एक शानदार नाम जिसके आधा महबूब नगर मीर महबूब अली साहब ने अपने तरफ से दे चुका है। लोग खूब खा लेके पालामूर जिला शर्म का मुकाम है। एक अच्छा सा नाम है, उसको नाम बदल के नाम खराब करना चाह रहे हैं, क्योंकि दूध एक पुराना गेहूं को ना पालूर बोल के था। उस जमाने में दूध वहाँ रखकर बेचा जाता था। उसको पालामूर जिला, पालामूर नरसिंह, पालामूर तो उनकी कमजोरी है। आसमान पे थूकने से अपने मुंह पे ही गिरता। मीर महबूब अली बादशाह है, आज दुनिया का काम कर चुके हैं। आज़ादी में 5 क्विंटल सोना दिए हैं। कौन सा बादशाह दिया? आज उस बादशाह को नाम मिटाना चाह रहे हैं, तो बड़ा अफसोस का मुकाम है। और हमारे भाइयों में थोड़ी बुराई भी है, उसको दूर करना चाहिए, अच्छा लेके चलना है। आजकल कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, तो भी उसको लेके चल रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं जो एक अरसे दराज से शहर महबूब नगर पर उठने वाली उंगलियों को एक दंदान शिकन जवाब देते हुए हमेशा इस शहर के नाम और इस शहर की सखावत और इस शहर की तारीख को कायम रखने में इस तंजीम ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। जैसा कि अजीज़ान मोहतरम, आज शहर महबूब नगर का 134वां यौम तासीस है। 1890 जुमेरात के दिन जनाब मीर महबूब अली खान निजाम शशुल के हाथों से इस शहर की संग बुनियाद रखी गई थी। ये वो शहर है हिंदुस्तान की तारीख में भी जब आजादी के लिए आजादी के लिए मुजाहिदीन की जरूरत थी, तो इस शहर ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुजाहिदीन को दिया। जब मरकजी कैबिनेट में जब काबिल लोगों की जरूरत थी, तो इस जिले से बड़े बड़े नामवर शख्सियतों ने हिंदुस्तान की कैबिनेट में अपनी नुमाइंदगियां की। जब रियासती सतह पर इस रियासत को एक बेहतरीन क़यादत की जरूरत थी, तो इस जिले ने रियासत को एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर का भी मुकाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजूदा चीफ मिनिस्टर का भी ताल्लुक इसी जिले से है, जिले महबूब नगर से। और जो आज रियासत तेलंगाना बनी, इस तेलंगाना का आगाज में एक जिले महबूब नगर की बहुत अहम किरदार, बहुत अहम ताकत है। अगर मैं समझता हूं कि उस वक्त के जो एमपी थे मोहतरम जनाब केसीआर साहब को अगर यहाँ की आवाम नहीं जिताती, तो शायद ही आज तेलंगाना का ख्याम अमल में आता। तो बहरे का बताना ये मकसूद है कि हिंदुस्तान को जब या रियासत को जब जरूरत पड़ी, इस शहर के लोगों ने अपना किरदार अदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको जरूरत है कि इस शहर की तारीख को और इस शहर के नाम को बचाने में हम अपना किरदार अदा करें। जनाब अब्दुल रहीम साहब जो एक जुनूनी हद तक इस काज को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, मैं इनको चाहता हूं इसीलिए हो कि तंजीम शायद ही इनके अलावा किसी और दूसरे के हाथ में रहती, तो शायद ये इतना जुनूनी सतह पर काम नहीं होता था। कभी इन्होंने वक्त को नहीं देखा, रात नहीं देखा, बड़े ने देखे, छोटे ने देखे, जब भी जहां पर भी जिस लेवल पर भी जाके बैठ जाना पड़ा, उन्होंने कभी सियासी पार्टी आज मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर
इस फाउंडेशन के सदर जनाब उनकी मधु पर हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं और हम सब की तरफ से फाउंडेशन को और सदर साहब को पहले मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर से इस महफिल में खुसूसी मेहमान की हैसियत से जनाब अब्दुल रहमान साहब और मोहसिन खान साहब के बाद जनाब MP वेंकटेश साहब एक बेहतरीन कारनामा का बेहतरीन सेकुलर लीडर महबूब नगर के वाकई कोई लीडर है जनाब MP वेंकटेश साहब एक सेकुलर लीडर रखने वाले और सीनियर एडवोकेट साहब आज उनको जो अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम बहुत से जो फोरम पे देखेंगे जरूर। साहब ने जो आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है ये काबिल सत्ताइश और काबिल मुबारकबाद है और इनका जुनून मैं तकरीबन 14 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ और जुनून तारी आज भी जो है सो जारी वो तारी है ऐसा जुनून। तो रहीम साहब जो है सो अवाम से क्या कहते हैं एक शेर के मिज़ाज में पेश करूँ। मेरी मुफलिसी से बचकर कहीं दूर जाने वाले अलीम बाबर साहब, मेरी मुफलिसी से बचकर कहीं दूर जाने वाले, मेरी मुफलिसी से बचकर कहीं दूर जाने वाले, ये सुकून न मिल सकेगा तुझे रेशमी कफन में। तो रहीम साहब को देख के जो भागते रहते हैं ना, उनकी नजर है शेर। रहीम साहब ये कह रहे हैं। रहा सवाल और हमारा मिजाज ये होना चाहिए कि किसी शायर के शेर के मिजाज, मेरे वालिद के शेर है ये, दिलों का दर्द टटोलो यही है राह नजात, दिलों का दर्द टटोलो यही है राह नजात, लरसते कांपते होठों का एहतराम करो। तो हमको आवाम को ये चाहिए कि हम जो है तो उनके लरसते कांपते होठों से जो अल्फाज निकलते उसका एहतराम करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए। और उनकी दीवानगी का ये हाल है, उनकी दीवानगी का ये हाल है कि किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तो कश्ती भंवर में है का किस्सा खत्म होगा इस वास्ते कि वहां पे बुग्गू भी डाल दिए, खोदना भी शुरू कर दिए। तो सबको इस बात का इल्म हो गया, इस बात का एहसास हो गया, ये महसूस करने लग गए कि जो है सो हालिया गवर्नमेंट में, हालिया दौर में, हालिया MLA के दौर में, इस दौर में इन्नम सिन्हा और रेड्डी साहब की सरपरस्ती में काम वहां पे शुरू हो चुका है। वो MP वेंकटेश साहब की सरपरस्ती हो या सादतुल्लाह हुसैनी के जानिब से जो है तो 20 लाख रुपए का सैंक्शन हो या हाजी साहब की सरपरस्ती हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जुनून काम में आ गया। हम नोयत थी ये जो जलसा है 134 साल जलसा, इसमें रहीम भाई को खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ ताकि उन्होंने एक 15 साल 16 साल से जो स्ट्रगल करके आज वो बिल्डिंग का जो भी हासिल करे वो बहुत बड़ी बात है और महबूब नगर के अवाम के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं उनको ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ बिल्कुल। और जहाँ तक मीर महबूब अली खान साहब हैं, एक वली सिफत इंसान थे और उनके जो इनखिलाबी इक़दाम थे और ऐसे ऐसे इनकलाबी इक़दाम थे, एक उस ज़माने के में भी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करे उन्होंने, जैसा कि रेलवे है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन टेलीग्राफ है, ये तमाम चीज़ें उनके दौर में आई है। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स है, जो मूसी रिवर जो फ्लड्स आने के बाद में वो फ्लड से पूरी तरीके से जो आवाम परेशान थी, उस आवाम के साथ रात दिन मेहनत करके रह के उनके अच्छे बुरे में शामिल होके और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सेकुलर भाषा के तौर पे नाम कमाया। और फिर वो मूसी रिवर कभी भी हमने फ्लड्स नहीं आना, आवाम को तकलीफ नहीं होना, बल्कि बेंगलोर के मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बुला के और एक उस्मान सागर, जब मूसी रिवर में फ्लड्स नहीं आने के लिए उस्मान सागर बनाया गया। और उनके दौर में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बने आपाशी के, और जो चैनल सिस्टम में जो तालाबें थे वो तालाबों का भी उस दौर में उन्होंने
महबूब नगर नवाब मीर महबूब अली खान साहब के नाम से मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़िश्ता 6-7 साल के अरसे से रहीम भाई के साथ शाने बशाने चल रहा हूँ। ज़्यादा तो वक्त नहीं दिया, लेकिन जितना भी दिया हूँ इखलास के साथ दिया हूँ, और जो कुछ भी ताउन किया हूँ इंशाल्लाह वो जारी है और आगे भी रहेगा। ये हमारे रहीम भाई की ही जो है ना कोशिश है कि आज नवाब मीर महबूब अली साहब का नाम महबूब नगर में ज़िंदा है, और जो जश्न महबूब नगर के नाम से आप बना रहे हैं वाकई बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। मैं जनाब रहीम साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक देराना ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर साहब के नाम से एक महबूब हाल तामीर हो, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़ायद मोहम्मद अब्दुल हादी साहब की क़ियादत में और हमारे फ्लोर लीडर जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब की बेइंतहा कोशिशों की वजह से आज जो है ना वो काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं रहीम भाई को यही कहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए कि मसाइल और जो है ना बोलने वाले बहुत बोलते रहते, लेकिन इंशाल्लाह मंजिल हमको खुद ब खुद मिलेगी। आपका ये बहुत बड़ा बड़ापन है कि आप हर किसी को लेके चलते हैं, बड़ों को, बच्चों को, नौजवानों को। ये आपकी जो कोशिश है आप जारी रखिए। इंशाल्लाह हम नौजवान भी जब कभी भी हमको आवाज़ देंगे ज़रूर हम आपके साथ रहेंगे। दामे दिल महबूब अली खान పేరు మీద ఒక భవనాన్ని నిర్మించుకోబోతున్నాం। దాని ప్రియారిటీ మొట్టమొదటిగా మన ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం గారికి దక్కుతుంది। మనం అందరం కూడా అతన్ని అభినందించాలి। అందుకు సహకరించిన ఆదిభాయ్ కానీ, కౌన్సిలర్ బ్యాచ్ కానీ, సాదత్ హుసేన్ కానీ, షబ్బీర్ కానీ, లేదా చైర్మన్ కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ వారందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలపాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ కృతజ్ఞతలు మనం తెలుపుకుందాం। 2023 అక్టోబర్ 5 తారీఖు బహుశా గురువారం బాబా షేక్ గారు, నేను, కొంతమంది ఒక టీము కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చాం। బాబా షేక్ గారికి గుర్తుందో లేదో, ప్రధానమైన 4-5 డిమాండ్లు పెట్టినాం। మహబూబ్ నగర్కు శ్మశాన వాటిక ఇచ్చినామని చెప్పి 10 ఏళ్లుగా గవర్నమెంట్ లో ఉన్న టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెప్తుంది। ఆ ఇచ్చిన శ్మశాన వాటికలు ఎక్కడ ఉన్నావో ఆ సర్వే నంబర్లో ప్రొసీడింగ్ కాపీలు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ రోజు మేము మాట్లాడినాం। ఎన్నికలు ఇంకా జరగలే, టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది। ఇది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేయకపోతే రాబోయే ప్రభుత్వాలు ఎన్నికల వాతావరణం నడుస్తుంది, వాళ్ళైనా దీని మీద హామీ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ రోజు మేము డిమాండ్ చేసాం। ఆ డిమాండ్ ఇంకా మిగిలే ఉంది, సంవత్సరం గడిచింది। అంటే చేసిన వాటిని మేము అభినందిస్తున్నాం। ప్రభుత్వాలు చేసిన వాటి గురించి చెప్పుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి। వాళ్ళు టీవీల ద్వారా చెప్తారు, పత్రికల ద్వారా చెప్తారు, మీటింగ్లలో చెప్పుకోగలుగుతారు। వాళ్ళకి అనుకూలంగా చెప్పుకునే నెట్వర్క్ చాలా ఉంది। వాళ్ళకి निकहते बागबानों में बटती रही, अर्थियां ऊंचो गुल की उठती रही। क्या बात है। निकहते बागबानों में बटती रही, अर्थियां ऊंचो गुल की उठती रही। और मैं आशियाने की दहलीज पर बैठा जश्न बहारा मनाता रहा। और मैं आशियाने की दहलीज पर बैठा जश्न बहारा मनाता रहा। और ये शेर मैं ही सदियों पुराना हूँ हिंदुस्तान, मेरे किरदार की बस यही दास्तां। मैं तो सावन, मैं ही सदियों पुराना हूँ हिंदुस्तान, मेरे किरदार की बस यही दास्तां। मैं तो सावन को समझा किया मेहरबान, और सावन मेरा घर जलाता रहा। मैं तो
तो सावन को समझा किया मेहरबान, और सावन मेरा घर जलाता रहा। अब आखिरी शेर जनाब बेकल उत्साही बड़े पुरज़मंदार। बेकल मेरे बालों पर नोच कर खारदारों के पहरे लगाए गए, लाके बेकल मेरे बालों पर नोच कर खारदारों के पहरे लगाए गए। कैद में रख के सयाद चुपचाप था, बन का पंछी मगर चहचहाता रहा। कैद में रख के सयाद चुप है भोदे बस का। हमारे हलीम बाबर साहब बड़ा अच्छा शेर पढ़े, उनके शेर के हिसाब से मैं एक शेर पढ़ के मैं रुखसत होता हूँ। अज़्म मुहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, अज़्म मुहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान बदल देता है साहिल तन्हा। कितने तूफान बदल देता है साहिल तन्हा। अल्लाह ताला और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। हमारे रहीम साहब जिस हैसियत से काम कर रहे हैं आगे बढ़ाए, हमारी यही दुआ है। यही कहते हुए 15 साल पहले मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।